السلام علیکم۔ سلجوقوں کے عروج کی اس نئی ایپیسوڈ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہماری پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ کیسے نظام الملک عین وقت پر کنک قبیلے آ کر امیر التبر کو روکتے ہیں اور سب کو خون خرابے سے بچا لیتے ہیں، اور ہماری آج کی اس قسط کی شروعات کورکت صاحب سے ہوتی ہے جب وہ وزیر اعظم حاجی نظام الملک سے کہتے ہیں، حاجی حضرت، اگر آپ نہ آتے تو ہم یقینی طور پر اپنا بہترین دفاع کرتے، اللہ معاف کرے لیکن خون ضرور بہہ جاتا۔ نظام الملک کہتے ہیں، ہمارا اولین فرض ہماری زمینوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ کورکت صاحب اب اپنے لوگوں کو خیموں میں بھیج دے۔ پھر کورکت سردار اونچی صدا لگاتے ہیں، چلو ہر کوئی اپنے خیمے میں چلا جائے، اور پھر سارے قبیلے والے اور کورکت صاحب خود بھی اجازت لے کر اپنے اپنے خیموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر نظام الملک سنجار سے کہتے ہیں، باشولو خاتون کی صورتحال کیسی ہے؟ سنجار کہتا ہے، تورنا خاتون نے انہیں ضروری شفا دے دی ہے، اللہ کا شکر ہے، اب ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ حاجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ پھر حاجی نظام الملک سنجار کو خفیہ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، صبح سویرے تیر جانتا ہے کہ اسے کہاں پر جانا ہے۔ حاجی نظام الملک خفیہ اشارہ کر لینے کے بعد قبیلے سے روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ پھر دوستوں دوسری جانب حسن صباح دکھایا جاتا ہے جو کہ رات میں اپنے گھر میں آتا ہے، لیکن اسے اپنے بند گھر میں کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ حسن صباح فوراً اپنا خنجر نکال کر کمرے کی طرف آتا ہے، لیکن آگے اچانک باطنی سربراہ عبد المالک کھڑا ہوتا ہے، اور عبد المالک پھر کہتا ہے، اندھیرے میں بھی تم سائے کو پہچان سکتے ہو اگر تم اعلیٰ امام کی سرپرستی میں ہو۔ حسن صباح فوراً احتراماً اپنا سر جھکا کر باطنی سربراہ عبد المالک کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اعلیٰ حضرت، یہ شرف کی بات ہے۔ عبد المالک کہتا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ جیسوں کے گھر میں داخل ہونا شیطانوں کے گھر میں داخل ہونے سے بھی مشکل ہے، یعنی آپ کا کام مجھ سے آسان نہیں ہے حسن۔ اب ہم شیطانوں کے محل میں آپ سے اور زیادہ باخبری کی توقع کر سکتے ہیں۔ حسن صباح کہتا ہے، میرا عہدہ مجھے جتنی اجازت دیتا ہے میں اتنا بہترین کروں گا، آپ بھی یہ جانتے ہیں۔ عبد المالک کہتا ہے، تو پھر اونچا عہدہ حاصل کرو جہاں تم مزید باخبر رہ سکو۔ نظام الملک کو اگر کسی پر شک ہو جائے تو وہ اسے آسانی سے نہیں جانے دیتا ہے، وہ ہم میں دوبارہ سے کسی کو گھسانے کی کوشش کرے گا۔ میں نے بہرام کو بھی ہدایت دے دی ہے اور اچھی طرح سے نصیحت کی ہے، اب سے ہم اپنے درمیان آدمی بھرتی کرنے کے لیے محتاط برتیں گے۔ دوستو، حسن صباح اپنا سر ہلاتا ہے، جبکہ عبد المالک کہتا ہے، جیسے ہی ہم اپنے عظیم مقصد کے لیے باہر سے کام کریں گے تو تم اندر داخل شدہ شیطانوں کا فائدہ اٹھاؤ گے اور اونچا عہدہ حاصل کرو گے۔ حسن صباح کہتا ہے، شیطانوں کے محل میں اونچا رتبہ حاصل کرنے کے لیے اپنے فرائض میں کامیابی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو ایک رتبہ حاصل کرنے کے لیے گھات میں ہے۔ البتہ بلا شبہ میں ان سب کو شکست دینے کا راستہ تلاش کروں گا۔ عبد المالک کہتا ہے، اگر سلجوق چنار کا عظیم درخت ہے تو تم اس میں ایک کیڑا ہو، تم اس چنار کے درخت کو اندر سے کترو گے تاکہ جو بھی اس کے راستے میں آئے وہ تباہ ہو جائے، آخر کار چنار کا درخت سڑ کر گر جائے گا۔ حسن صباح کہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں ایسے اہم مقامات حاصل کروں گا کہ جب وقت آئے گا تب ہم سلجوقوں کی لگام کھینچ لیں گے۔ عبد المالک مسکراتا ہے، جبکہ پھر دوسری جانب کنک قبیلہ دکھایا جاتا ہے جہاں باشولو خاتون کو ہوش آ جاتا ہے اور سنجار سپاہی اپنی والدہ کی تیمارداری کرنے میں مصروف ہوتا ہے اور انہیں سوپ پلا رہا ہوتا ہے۔ سنجار کہتا ہے، ماشاءاللہ امی جان، آپ جلد از جلد صحتیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ باشولو خاتون کہتی ہیں، اللہ اس لڑکی سے راضی ہو، اس نے مجھے شفا دی ہے، لیکن اس نے انتظار کیوں نہیں کیا ہے؟ اگر میں اسے دیکھ سکتی تو یہ اچھا ہوتا۔ سنجار یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ باشولو خاتون کہتی ہیں، کیا کوئی بری خبر ہے بیٹا؟ سنجار کہتا ہے، نہیں، اسے جانا تھا اور وہ چلی گئی، آپ شوربا پئیں اور کچھ آرام کریں۔ باشولو خاتون کہتی ہیں، یہ کافی ہے بیٹا، شکریہ تمہارا، اب مجھے تھوڑا آرام کرنا چاہیے۔ پھر سنجار سپاہی اپنی ماں کی مدد کرتا ہے اور انہیں بستر پر لٹا دیتا ہے۔ سنجار پھر پاس بیٹھ کر تورنا خاتون کا دیا
लिया हुआ रुमाल देखने लगता है, जबकि दूसरी जानब तुरना खातून दिखाई जाती हैं, जो कि शलमजार महल में पहुंच जाती हैं और अमीर अल्तबर अपनी बेटी का बाजू पकड़े हुए इससे कहता है, तुम ये गुस्ताही कैसे कर सकती हो, और ये गुस्ताही इस कबीले वाले आदमी से ज्यादा तुम्हारी है। तुरना खातून कहती हैं, बाबा जान, मैंने एक मरीज की जान बचाने के अलावा और क्या किया है। अमीर अल्तबर कहता है, अगर तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हारी नहीं सुनेगी तो कोई भी नहीं सुनेगा। तुमने इस कबीले के आदमी की बात अपने बाबा की बात के बराबर समझी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे रियासत से टकराना पड़ा। तुरना खातून कहती हैं, ये अल्फाज या सुनने का मसला नहीं है बाबा, बल्कि ये एक जान का मसला है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अगर मैं वहाँ ना जाती तो वो औरत मर गई होती। अमीर अल्तबर कहता है, निजामुल मुल्क से मैंने जो भी कहा है मैं तुमसे भी दोबारा दोहराना चाहूंगा। अगर मैंने इस कबीले के आदमी को शलमजार या तुम्हारे इर्द गिर्द दोबारा देखा तो इस मर्तबा मेरा उठा हुआ हाथ कोई नहीं रोक सकता। अब से अगर तुम मुझे बगैर बताए कहीं गई तो तुम इस कमरे से दोबारा नहीं निकल सकोगी। अमीर अल्तबर तुरना खातून के कमरे का दरवाजा बंद करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, जबकि फिर अगली सुबह सल्जूक महल दिखाया जाता है, जहाँ सुल्तान मलक शाह अपने सामने मौजूद हदफ सेब पर निशाना लगा रहे होते हैं और इतने में एल्चन खातून भी महल के सहन में आ जाती हैं और सुल्तान से कहती हैं, मेरे सुल्तान, तीरों के पर अच्छी तरह से नहीं जोड़े गए हैं, इसी वजह से निशाना चौंक गया है। सुल्तान मलक शाह अपने सिपाहियों को इशारा करते हैं और सिपाही एल्चन खातून को सुल्तान के पास आने देते हैं। सुल्तान मलक शाह कहते हैं, आप तीर अंदाजी अच्छी तरह से जानती हैं, तो ये लें। सुल्तान मलक शाह अपना तीर एल्चन खातून को देते हैं, जबकि एल्चन खातून इस तीर को सही तरह गौर से देखती हैं और कहती हैं, जब सुल्तान अलपरसलान शहीद हुए थे तो इस वक्त आपकी उम्र 17 बरस थी और इसी दिन से आप दुनिया के सुल्तान हैं। मैं हमेशा हैरान होती हूँ कि इस कामयाबी के पीछे क्या राज है। सुल्तान मलक शाह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ज्यादातर सही फैसला करना और कभी कभी जानते हुए कि अपनी रियासत के लिए कैसे तकलीफ दे फैसले करने हैं, यही सुल्तान की किस्मत है। सुल्तान फिर एल्चन खातून का सही किया हुआ तीर अपने हदफ पर चलाते हैं, जो के सामने लटके हुए सेब पर ठीक दरमियान में जा लगता है। फिर एल्चन खातून कहती हैं, बहुत ज्यादा लोगों के इर्द गिर्द होते हुए भी सुल्तान बिल्कुल तन्हा होता है। मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ, किसी वफादार आदमी को ढूंढना और किसी पर अंधा एतमाद करना सुल्तानों के लिए बहुत मुश्किल है। सुल्तान मलक शाह कहते हैं, आपके हिस्से में भी दुनिया की सबसे पुरहजूम तन्हाई है। एल्चन खातून कहती हैं, हमारी सल्तनत एक बड़े दरख्त की मानंद है, जहाँ हर कोई फल चुनता है, मगर जब घर गिरता है तो आस पास सब गायब हो जाते हैं, बाकी अपने फायदे के लिए रह जाते हैं। मगर किसी दिन मैं एक घर ढूंढूंगी जो मेरे लायक होगा। एल्चन खातून सुल्तान को तीर सही करके देती हैं, लेकिन सुल्तान मलक शाह अपनी कमान आगे करते हैं और एल्चन खातून से कहते हैं, मुझे अपनी काबिलियत दिखाएं। और इस वक्त सुल्तान के अंगूठे में अपनी दी हुई अंगूठी देखकर एल्चन खातून बड़ी खुश होती हैं और कमान सुल्तान से लेती हैं। लेकिन दोस्तों, ऊपर छत पर टर्कन खातून ये सब देख रही होती हैं और उन्हें बड़ी परेशानी लाहक होती है। लेकिन इधर एल्चन खातून अपने हदफ का निशाना लेती हैं और तीर छोड़ती हैं और दोस्तों, ये तीर सीधा हदफ यानी कि सेब के दरमियान में जा लगता है और इसके 2 टुकड़े कर देता है। और सुल्तान मलक शाह ये देखकर दंग रह जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। फिर दोस्तों, दूसरी जानब अमीर ताजुल मुल्क दिखाया जाता है, जो कि महल की छत पर मौजूद तर्कन खातून के पास आता है। इस दौरान तर्कन खातून हसद में जलती हुई कहती हैं, ताजुल मुल्क, अब वक्त आ गया है कि हम भी अपने तीर चलाएं। और फिर दोस्तों, दूसरी जानब सिपाही सांजार दिखाया जाता है, जो कि हाजी निजामुल मुल्क के कहने पर सुबह सवेरे ही अपने घोड़े पर सवार खुफिया जगह की तरफ रवाना हो जाता है। जबकि दूसरी जानब महल में सुल्तान मलक शाह दिखाए जाते हैं, जो कि अपने घोड़े को तैयार करने में मसरूफ होते हैं और कहते हैं, जमीन पर हवा की तरह
उड़ते हुए और जंग में ठंडी हवा की तरह। यलबोरा, मेरा दिल मेरे बेटे के दर्द में जल रहा है। मुझे बताओ यलबोरा, मुझे अपने बेटे को देखने की हसरत है, जिसके लिए मैं इतने सालों से तरस गया हूँ। क्या मैंने बहुत ज्यादा मांगा है? इतने में हाजब कमच आता है और कहता है, सुल्तान, हाजी हजरत की तरफ से ये हाथ आया है। सुल्तान मलक शाह खुफिया हाथ फौरन कमच से लेते हैं और इसे खोलते हैं और इस हाथ में लिखा होता है कि राज जाहिर होने के लिए इंतजार में है और इमानतें अपने मालक की मुंतजर हैं। मलक शाह फौरन हाजब कमच से कहते हैं, फौरन मेरे कपड़े तैयार करो। कमच कहता है, जी अभी मेरे सुल्तान, जैसे आप चाहें। और फिर सुल्तान मलक शाह फौरन कमच के हमरा खुफिया चबूतरे की तरफ रवाना हो जाते हैं। जबकि फिर महल में एल्चन खातून दिखाई जाती हैं, जिनका आमना सामना अचानक तैरकन खातून से हो जाता है। तैरकन खातून एल्चन खातून से कहती हैं, क्या मैंने तुम्हें खौफजदा कर दिया है? एल्चन खातून कहती हैं, काफी वक्त हो गया है कि मैंने डरना छोड़ दिया है तैरकन खातून, आप फिक्र ना करें। तैरकन खातून कहती हैं, बहुत खूब, ये वाजिया है, क्योंकि अगर तुम खौफजदा होती तो तुम इस महल में इतनी पुरसकून ना होती, खास तौर पर तब जब तुम यहाँ पर एक कैदी हो। एल्चन खातून मुस्कुराती हुई कहती हैं, मैं यहाँ पर कैदी के तौर पर नहीं, बल्कि सुल्तान मलक शाह के मेहमान के तौर पर मुकीम हूँ। तैरकन खातून कहती हैं, हाँ, कैद को कबूल करना मुश्किल जो है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मजीद इस हैबत आमेज सूरत हाल में नहीं छोड़ूंगी। मैं सुल्तान से बात करके जो कर सकती हूँ करूंगी, ताकि तुम जल्द अपने हैमे में वापस चली जाओ। सुल्तान इस मामले में मेरी दरख्वास्त को रद्द नहीं करेंगे। एल्चन खातून कहती हैं, ये बहुत खुश असलूबी है कि आप एक ऐसे कैदी के लिए फिक्रमंद हैं जिसे आप जानती भी नहीं है, लेकिन आप फिक्र मत करें। सुल्तान ने ये बयान दिया है कि वो वापस महल में मेरी मेजबानी करके बहुत खुश हैं। तैरकन खातून कहती हैं, इतनी बेचैन मत हो। एल्चन खातून, एक फूल जो मट्टी से टूट जाए ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। हर लम्हा जो तुम यहाँ गुजार रही हो, हमारा मेहमान खाना जिसे तुम बहुत पसंद करती हो, तुम्हारी ही जिंदगी को जहन्नम में बदल सकता है। एल्चन खातून कहती हैं, जब सुल्तान सूरज की तरह हमारे सरों पर हैं, तो ऐसा करने की हिम्मत कौन कर सकता है? तैरकन खातून कहती हैं, हमारे सुल्तान का सूरज बहुत ताकतवर है, लेकिन ये हर चीज को झुलसा भी सकता है। तुम्हारे बाबा और तुम्हारे भाई केलज अरसलान तुम्हें इसकी याद दिलाएंगे। दोस्तों, अपने वालिद और भाई के मुतल्लिक सुनकर एल्चन खातून गुस्से से यहाँ से चली जाती हैं। जबकि फिर दूसरी जानब बाजंतीनी कमांडर योरगोस दिखाया जाता है, जो कि एक ताजर के भेस में इस्फहान के बाजार में पहुंचता है, और दूसरी जानब सपाही संजार निजामुल मुल्क के खुफिया ठिकाने पर पहुंचता है। इधर योरगोस एक लोहार के पास आता है और इसे सलाम करता है। लोहार योरगोस का शुक्रिया अदा करके सलाम का जवाब देता है। योरगोस फिर संजार का तीर लोहार को दिखाता है और कहता है, मुझे बिल्कुल इसकी नकल चाहिए, ये मुझे कहाँ मिल सकता है? लोहार एक नजर इस तीर की नोक को गौर से देखता है और फिर कहता है, ये लोहा सिर्फ एक ही कबीले में तैयार होता है। योरगोस कहता है, वो कबीला कौन सा है? लोहार कहता है, किनेक कबीला। फिर दोस्तों, दूसरी जानब सपाही संजार दिखाया जाता है, जो कि निजामुल मुल्क के खुफिया कमरे में पहुंच जाता है, और इस दौरान वजीर आजम निजामुल मुल्क भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। संजार कहता है, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? निजामुल मुल्क कहते हैं, तुम मेरा यहाँ इंतजार करो और मेरे आने से पहले यहाँ से कहीं मत जाना। संजार कहता है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हाजी? हाजी कहते हैं, सवाल मत करो, जो मैं कह रहा हूँ वही करो। तुम इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, चाहे तुम्हारी जान ही क्यों ना निकल जाए। समझ गए हो क्या? संजार अपना सर हिलाता है, जबकि हाजी निजामुल मुल्क कमरे से बाहर चले जाते हैं। इतने में दोस्तों, सुल्तान मलक
मलक शाह भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और फौरन अपने घोड़े से उतरकर खुफिया चबूतरे का दरवाजा खटखटाते हैं। इस दौरान हाजब कमज भी सुल्तान के हमरा मौजूद होता है, जबकि निजामुल मुल्क फौरन दरवाजा खोलते हैं और अपने सुल्तान को खुशामदीद कहते हैं। निजामुल मुल्क फिर सुल्तान को जेरे जमीन एक खुफिया कमरे की तरफ लिफ्ट की मदद से लेकर जाते हैं और इस दौरान संजार भी लिफ्ट की आवाज सुनकर बड़ा बेचैन हो जाता है कि हाजी मेरे साथ क्या करने जा रहा है, जबकि हाजी निजामुल मुल्क अपने सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान, मैंने जो कहा है इसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बेटे को मिलना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि फिर क्या होगा, लेकिन अगर आप फिर भी इसे देखने पर इसरार करते हैं तो वो वहाँ उस कमरे में मौजूद है। निजामुल मुल्क एक कमरे की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, सिर्फ 2 कदम के फासले पर, जबकि सुल्तान मलक शाह हसरत के साथ अपने बेटे वाले कमरे की जानब देखने लगते हैं, जबकि दूसरी जानब कमरे के अंदर मौजूद संजार सपाही भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। हाजी निजामुल मुल्क कहते हैं, सुल्तान, अगर हम किसी चीज के दहाने पर हैं तो मैं अपना किरदार अदा करूंगा। इस वक्त सुल्तान मुअज्जम लगातार कमरे की तरफ देखते जाते हैं, लेकिन हाजी निजामुल मुल्क अपनी वजीर आजम की मोहर सुल्तान के हाथों में थमा देते हैं, जबकि सुल्तान मलक शाह कहते हैं, इसका क्या मतलब है हाजी? हाजी कहते हैं, इन तमाम सालों में मैंने आपके लिए और रियासत के लिए बहुत सी मुश्किलात को बर्दाश्त किया है। मैंने अच्छी तरह से इस राज की हिफाजत की है, लेकिन इस मामले को जो आप कर रहे हैं ना ही मेरी अकल तस्लीम करती है और ना ही मेरा दिल कबूल करता है। इन तमाम सालों में मैंने अपने लिए एक लफ्ज भी नहीं बोला है, सब कुछ रियासत के लिए किया था। अगर मैं जो कह रहा हूँ वो नजरअंदाज किया जा रहा है और अगर आपके मुझ पर एतमाद को ठेस पहुँची है तो फिर अब से वाक़या होने वाले तमाम वाक़यात की मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा, मैं खुद को खामोशी में लपेट लूंगा। सुल्तान कहते हैं, क्या आप अपना फर्ज छोड़ देंगे? हाजी अपना सर हिलाते हैं और अपने सर पर मौजूद वजीर आजम की टोपी उतार कर पास मौजूद सफेद पगड़ी उठाते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ कि इसका अंजाम फांसी है, लेकिन मैं इसका खतरा मोल लेना चाहता हूँ। हाजी निजामुल मुल्क फिर सफेद पगड़ी पहनते हैं और कहते हैं, मैंने सर पर कफन बांध लिया है, बाकी अल्लाह मदद करेगा, आपका बेटा वहाँ है। हाजी अपना सर झुकाकर इजाजत लेते हैं और जाते हुए मुड़कर कहते हैं, मैंने कभी भी आपके बेटे से मुतल्लिक कोई बदउनवानी नहीं की है और ना ही मैं कभी करूंगा। हाजी निजामुल मुल्क फिर लिफ्ट पर सवार होते हैं और ऊपर चल देते हैं, जबकि मलक शाह ये सब देखकर बड़े परेशान होते हैं, लेकिन अपने बेटे की हसरत इन्हें कमरे के नजदीक लेकर चलती जाती है, जबकि कमरे के अंदर मौजूद अहमद संजार भी बड़ा हैरान होता है। इधर सुल्तान मलक शाह अपने कदम अहमद की तरफ बढ़ाते जाते हैं, लेकिन अचानक इन्हें हाजी की नसीहत याद आती है, जब उन्होंने अपने सुल्तान से कहा था, आपका नाजुक तरीन मकाम अहमद है और चाहे आप दुनिया के हुक्मरान हो, अगर दुश्मन ने आपको इस मकाम पर निशाना बनाया तो अल्लाह की पनाह हर चीज तबाह हो जाएगी। लेकिन मलक शाह मजीद अपने कदम आगे बढ़ाते जाते हैं और अब सिर्फ बाप बेटे के दरमियान एक बंद दरवाजे की रुकावट होती है और यहाँ तक के सुल्तान मलक शाह अहमद के कमरे के दरवाजे को पकड़ तक लेते हैं और संजार की सांसें खुश्क होती हैं। और दोस्तों, यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।